Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So what did we have? We have on the left hand side c by mu prime minus c by mu. एक c को I took it inside, so it has m naught c is equal to h 1 minus cos phi. Is it okay? Yes, sir. So c by mu prime minus c by mu is equal to h by m naught c 1 minus cos phi. Is it okay, everybody? Yes, sir. What is c by mu prime? Isn't it lambda prime? Lambda prime. Lambda prime. Lambda prime So lambda prime minus lambda minus lambda is equal to h by m naught c 1 minus cos phi. निकल गया दोनों का difference. This is nothing but delta lambda. This is the final equation that Compton got. Is it okay, everybody? Yes, Yes, sir. sir. Can you see that the separation is a function of lambda? Sorry, is a function of phi? Phi. Yes, sir. Right. So now you put, देखो याद करो मैंने बोला था for phi equal to 0 degree ऐसा ग्राफ मिला था, सिर्फ लैम्डा पे ही मिला था एक, ओनली लैम्डा पे इंटेंसिटी, राइट? यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. yes sir So you put phi equal to 0 over here. What do you get? इस इक्वेशन में पुट करो 1 cos 0 by is, m not c अरे 0 हो जाएगा सर 0 0. so delta lambda is 0. In other words, lambda prime is equal to lambda. Same, एक ही wavelength मिलेगा. Is it okay? Yes, sir. yes So sir now you want to find out the shift. अगर आप लोग shift निकालना चाहते हैं किसी भी एंगल के लिए तो आप लोग निकाल लीजिए. If you want to find out for phi equal to let us say 45 degree, तो यहाँ पे cos 45 डालिए तो delta lambda निकल आएगा. You want to find it for 135, you want to find it for 90 degree, whatever phi you want to find out, you will see that delta lambda is increasing. Cos phi, डेल्टा लैम्डा का मैक्सिमम क्या होगा? अच्छा, डेल्टा लैम्डा का मिनिमम कितना हुआ? डेल्टा लैम्डा मिनिमम इज 0 डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब cos 90 0 होगा Cos 90. जब, अच्छा cos phi का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? cos phi का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 1. और cos phi का मिनिमम वैल्यू 0 -1. माइनस -1. 0 नहीं, तो सॉरी सर माइनस, -1 तो -1 कब होगा? जब phi इक्वल टू 180 डिग्री होगा. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. In that case delta lambda would be maximum, ये वाला. तो ये हो जाएगा -1 यानी 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2h by m naught c. दिस इज मैक्सिमम शिफ्ट. तो 180 डिग्री पे phi के 180 डिग्री पे मैक्सिमम शिफ्ट मिलेगा और 0 डिग्री पे मिनिमम शिफ्ट मिलेगा. दिस इज फॉर phi इक्वल टू 0 डिग्री. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So this is basically what Compton derived. तो Compton ने ये तो निकाल लिया कि ये phi का फंक्शन है डेल्टा लैम्डा. डेल्टा लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ phi
and he found out the exact formula for it. Now let me tell you something. Let me clear my drawing. So delta lambda, which is nothing but lambda prime minus lambda, is equal to h by m naught c 1 minus cos. ये जो टर्म है, this one, h by m naught c is called the Compton wavelength. इसका नाम है Compton wavelength. Right? Is it okay? Yes, sir. Let us find out the value of this Compton wavelength for electron. So, Compton wavelength of an electron. Compton wavelength क्यों निकाल रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा. Of an electron निकाल लेते हैं. What is lambda c? Lambda c is h by m naught c. तो values put कर देते हैं electrons के. h का value तो fixed है 6.626 into 10 to the power of minus 34 divided by mass of the electron is 9.11 into 10 to the power of minus 31 kg. Speed of light is 3 into 10 to the power of 8. Please मुझे कोई value बताइए. Use your calculators and give me the value. Sir, 0.02427 angstrom. मीटर्स में पहले बताओ, ये तो मीटर्स में आ रहा है. Either you are having a book in front of you or you are searching net, whatever. Give me the value in meters first. 2.42 into 10 to the power minus 4. 2.42 into 10 to the power of minus Minus 12. meters. ठीक है, सब कुछ ऐसा ही में है. तो लैम्डा सी भी वेवलेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर में होगा, मीटर्स. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एंगस्ट्रॉम में. 2.42 into 10 to the power of minus 2 एक साथ लिख देते हैं और 10 to the power of minus 10 को अलग छोड़ देते हैं. तो ये जो है दिस इज एंगस्ट्रॉम. तो ये कितना बन गया? दिस बिकम्स 0.0242 एंगस्ट्रॉम. इज इट ओके? Yes, sir. फाइन. ये हम लोगों ने क्यों निकाला अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा. प्लीज कीप दिस इन स्क्वायर बॉक्स बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लैम्डा सी का वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन ये हम लोगों ने निकाला. लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड है. कैन एनीबडी ऑफ यू पॉइंट मी आउट कि कौन सा क्वेश्चन अनआंसर्ड है अब तक? Can anybody of you point me to a direction कि ये unanswered है? चलो मैं हिंट देता हूं. This was the wavelength. This was intensity. कोई बोल सकता है क्या क्वेश्चन अभी तक अनआंसर्ड है? सर यू और एम का वैल्यू. अरे u तो लैम्डा पे है और m है लैम्डा डैश पे. यही है ना? यस सर. अनआंसर्ड क्या है? देखो स्टूडेंट्स, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका फिजिक्स अच्छी तरह से समझ लो. नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड द फिजिक्स. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट. प्लीज
इफ यू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, काफी लंबा मैथमेटिक्स है, डेरिवेशन लंबा चला, आप लोगों को लग रहा होगा इतना लंबा डेरिवेशन, बट द डेरिवेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो वो डेरिवेशन ठीक है, बट प्लीज समझो हो क्या रहा है इसके पीछे. एक एक्सरे का फोटोन आया, it hits the electron, it gets scattered to a lower frequency या higher wavelength, and the electron gets recoiled. तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया जा सकता था using wave nature of light, because मैंने पिछले दिन ही बोला था, if light is behaving as waves, then whatever is the wavelength of incoming X-ray, the outgoing X-ray will be of the same wavelength. It can only be explained using particle theory of light, that is photons, that light is behaving as particles. जैसे बिलियर्ड बॉल कोलिजन हुआ, लाइट आया, लाइट एक पार्टिकल की तरह आया, it collided with the electron, gave some of its energy to the electron, and it in the process it has lost some energy. एनर्जी लूज किया मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया या वेवलेंथ बढ़ गया, ऑल फाइन. बट स्टिल दो लाइंस क्यों मिल रहे हैं? सिर्फ ये मिलना चाहिए था ना, मॉडिफाइड. समझ रहे हो? आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? ये जो इंटेंसिटी है, ये जो इंटेंसिटी है, दिस इंटेंसिटी इज एट द डिटेक्टर. ये जो एक्सरे स्कैटर होके गया है, ये एक्सरे आया, ये रिकॉइल किया, ये डिटेक्टर पे दो वेवलेंथ मिल रहे हैं. एक तो ओरिजिनल मिल रहा है और दूसरा मॉडिफाइड मिल रहा है. अब तक हम लोग जो करते आए हैं, मॉडिफाइड का एक्सप्लेनेशन मिल गया, मॉडिफाइड का एक्सप्लेनेशन मिल गया. क्यों मॉडिफाई होगा? क्यों मॉडिफाई होगा स्टूडेंट्स? व्हाई विल द वेवलेंथ गेट मॉडिफाइड? Because of the collision. करेक्ट. कोलिजन में क्या हो रहा है? सिंपल लॉजिक, एक एक करके आंसर Energy. करते हैं. एनर्जी लॉस कर रहा है, सिंपल. कोलिजन, बिकॉज, देखो एक एक करके आंसर करते हैं. बिकॉज ऑफ कोलिजन, फोटोन लूजेस एनर्जी. एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. फोटोन लूजेस एनर्जी का मतलब है फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस. इसका मतलब है वेवलेंथ Increase. Increases. Increases. इंक्रीजेस. सिंपल, एकदम लॉजिकली प्रोसीड करते हैं इसको. बिकॉज ऑफ कोलिजन, जो कि पार्टिकल नेचर से हो सकता है, वेव नेचर से कोलिजन का कुछ पता नहीं है, पार्टिकल नेचर से. बिकॉज ऑफ कोलिजन फोटोन लूजेस एनर्जी. किसको लूज करता है? इट लूजेस एनर्जी टू, Energy. इट लूजेस Electron. एनर्जी टू Electron. इलेक्ट्रॉन. Electron. और क्योंकि वो एनर्जी लूज करता है, उसका फ्रीक्वेंसी घट जाता है. फ्रीक्वेंसी घट जाता है मतलब वेवलेंथ बढ़ जाता है. तो मुझे, Wavelength बढ़ जाता हाँ, तो मुझे मॉडिफाइड वेवलेंथ मिल गया. ओके, तो मुझे मॉडिफाइड ही मिलना चाहिए था ना, हायर वेवलेंथ ही मिलना चाहिए था, लैम्डा प्राइम ही मिलना चाहिए था. ये दोनों क्यों मिल रहे हैं? दैट्स माय पॉइंट. ये जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, दिस ग्राफ कॉम्पटन गॉट एट द डिटेक्टर, यानी यहां पे मिला है. तो यहां पे तो सिर्फ मॉडिफाइड वाला मिलना चाहिए था. व्हाई इज ही गेटिंग, और व्हाई डिड ही गेट द अनमॉडिफाइड लाइन एज वेल? सर, दोनों. दो से इलेक्ट्रॉन दो पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, इसलिए क्या? इलेक्ट्रॉन कैसे पार्ट में बटे? नो, तभी तो सर दो टू मिलेगा ना, एक तो कैसे no, मिलेगा? no. The answer is, so let me answer, let me frame the question first. So इसको इरेज करते हैं. क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, एक्सप्लेन. क्वेश्चन ऐसा होगा, एक्सप्लेन द origin of modified and unmodified peaks या lines in Compton effect.
इन दोनों के ओरिजिन को एक्सप्लेन करो, कैसे आया ये, इज इट ओके? ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं बताया. द पॉइंट इज, व्हेन आई वाज ड्राइंग द डायग्राम, मैंने एक ऐसा फोटोन लिया और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, फिर मैंने दिखाया कि ये गया और ये स्कैटर हो गया, ये रिकॉइल हो गया. दिस इज, मैंने लिखा था फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? इज इट ओके? यस सर. Yes, sir. बट कॉम्पटन ने जो किया था, बेसिकली दिस वाज नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन. कॉम्पटन ने यहां पे क्या किया था, दिस टारगेट वाज कार्बन टारगेट, कार्बन के ऊपर एक्सरे को डाला था कॉम्पटन ने. तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन जहां पे मैंने फ्री लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज बेसिकली एन एटम ऑफ कार्बन. ये कार्बन का एटम है जहां पे एक्सरे आके हिट हो रहा है. सो दिस इज बेसिकली कार्बन टारगेट दैट कॉम्पटन यूज्ड. अब देखो, सिंपल बात, पहले मैं इसको लेमन के लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देता हूं, देन वी विल राइट इट इन इंग्लिश. इंग्लिश को लेके उतना बॉदरेशन मत रखो. अगर आप अपने लैंग्वेज में भी मुझे समझा देते हो, बुक से कॉपी बिना किए, आप लोग बुक से कॉपी कर सकते हो, यू कैन, बुक में जो एक्सप्लेनेशन है सेम एक्सप्लेनेशन है, बट इवन इफ यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, आई टेक इट, बिकॉज मैं देखूंगा कि आप लोग समझे हो कि नहीं कॉन्सेप्ट. सो लुक एट दिस. से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम. शेल्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो, ये एक इलेक्ट्रॉन, से फॉर एग्जांपल, मैं कुछ जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस कर रहा हूं. एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये लेट अस से, फिर जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन. नाउ टेल मी वन थिंग, सबसे टाइटली बाउंड कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जो न्यूक्लियस के जितने पास होगा. करेक्ट. और सबसे लूजली बाउंड, यानी इस ऑर्बिट के सबसे लूजली Valence बाउंड. cell में. हाँ, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन. सबसे दूर होगा. हाँ हाँ. सो दीज आर लूजली बाउंड. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट के, दीज आर लूजली बाउंड. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर टाइटली बाउंड. ठीक है, मैं इसको कलर करता हूँ. लेट्स मेक देम डिफरेंट. टाइटली बाउंड. सो लाल को मैंने कर दिया टाइटली बाउंड. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, समझो लॉजिक को. फोटोन आया, सो लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर. अ फोटोन कम्स. देखो, दो सिनारियोज हो सकते हैं. एक, फोटोन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इसको नॉकआउट कर देना काफी आसान है. एम आई राइट? यस सर. Yes, sir. नॉकआउट हो जाएगा. तो इसको, इस फोटोन ने अगर नॉकआउट कर दिया, इफ द फोटोन मैनेजेस टू नॉकआउट दिस इलेक्ट्रॉन, विच इज इजियर टू डू, काफी आसान है करना, इंटरेक्ट किया इसके साथ, देन फोटोन अपना एनर्जी लूज करेगा. Yes, यस sir. सर करेगा, लूज करेगा एनर्जी. Will, because if the photon is able to knock out the electron, the photon will lose energy. Am I right? ट्रांसफर दिस एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन. Yes, हाँ. sir. तो जो बाहर Yes, जो sir. फोटोन जाएगा, the scattered photon will have lower energy. Am I right? Yes, sir. sir. Lower energy. Yes, sir. तो आपको क्या मिलेगा? मॉडिफाइड पीक. ठीक है, यानी लैम्डा प्राइम. इज इट ओके? यस सर. Yes, sir. बट अगर दूसरा सिनारियो, फोटोन कम्स एंड इंटरेक्ट्स विद एन इनर इलेक्ट्रॉन, तो इसको नॉकआउट नहीं कर पाया वो, इतना एनर्जी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को उसने अपना एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं किया, बिना ट्रांसफर किए ये स्कैटर हो गया. Am I right? सर इससे तो 2 Yes, पॉइंट sir. मिल जाएगा. So इससे तो 2 पॉइंट.
अगर वो ट्रांसफर नहीं कर पाया, व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विथ विच इट इज इंटरेक्टिंग इज टाइटली बाउंड, उसको नॉकआउट नहीं कर पाया। नॉकआउट नहीं कर पाना मतलब ही हैज नॉट मैनेज्ड, सॉरी, द फोटोन हैज नॉट मैनेज्ड टू ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नॉकआउट नहीं कर पाया। एंड इफ इट हैज नॉट मैनेज्ड टू ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी, तो जो बाहर वाला जो फोटोन जाएगा उसका एनर्जी सेम रहेगा इनकमिंग के साथ। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सेम होगा। दैट मीन्स वेवलेंथ भी सेम रहेगा। दैट, सॉरी, लैम्डा प्राइम नहीं होगा, लैम्डा होगा। दैट मीन्स यू विल गेट द मॉडिफाइड, द अनमॉडिफाइड। तो समझो कॉन्सेप्ट को, समझो। कॉन्सेप्ट इज, अगर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ वो आ जाता है एंड इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी, इजिली ट्रांसफर कर देगा तो उसका एनर्जी घटेगा, कुछ ट्रांसफर किया उसने, राइट? तो मुझे मॉडिफाइड पीक मिला। लेकिन अगर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ उसने इंटरेक्ट किया तो वो ट्रांसफर ही नहीं कर पाया, उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया, स्कैटर हो गया। So अगर वो ट्रांसफर नहीं कर पाया, if it has not managed to transfer some of its energy, then the energy remains same. And if its energy remains same, its wavelength remains same. So that is the reason for unmodified. Am I clear to everybody? सर अगर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो सिर्फ मॉडिफाइड पीक मिलना चाहिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो सिर्फ मॉडिफाइड मिलेगा, बट ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिल सकता, राइट? वो तो किसी एक एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा ना। मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सूप कहां से लाऊंगा? वेयर कैन आई ब्रिंग अ सूप? बट ऑल आई कैन डू इज आई कैन मेक द एक्सरे इंटरेक्ट विद द एटम। अब एटम्स में कुछ लूजली बाउंड है और कुछ टाइटली बाउंड है। जो लूजली बाउंड है वो लगभग फ्री ही है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो लगभग फ्री है। सो दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स, द फोटॉन्स मैनेज to transfer their energy to those electrons. But for those who are tightly bound, उनको वो अपना एनर्जी नहीं ट्रांसफर कर पाता, सिर्फ रिकोशिएट करके या स्कैटर करके अलग डायरेक्शन में चला जाता है, बट उसका एनर्जी चेंज नहीं होता। और अगर उसका एनर्जी चेंज नहीं हुआ, then in that case the wavelength doesn't change. Is it okay? Yes, sir. हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था ये किसी ब्लैक बोर्ड पे हो रहा था क्या? क्योंकि अगर सर आप बोल रहे हो कि ये एक्सरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके रिएक्ट कर रहा है और उसका जो मींस जो स्कैटर्ड एक्सरे है जो और जो रिकॉइल जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सर ये किसी बोर्ड के ऊपर ही तो हो रहा होगा। बोर्ड नहीं, कार्बन टारगेट रखा गया था। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो एक्सरे निकाल रहा था। दिस इंस्ट्रूमेंट वाज एन एक्सरे निकालने का ट्यूब। यहाँ पे एक कार्बन के टारगेट को रखा गया है, उसके बाद यहाँ पे डिटेक्टर को रखा गया। तो डिटेक्टर रोटेट कर सकता था पूरे इसमें, तो जितना भी स्कैटर एक्सरे मिल रहा था वो यहाँ से डिटेक्टर रीड कर रहा था। इज इट ओके? यस सर। So it, be very clear with this. यानी it is as if कि मैं एक एनालॉजी देता हूँ, I am the photon और मैं क्लास में आता हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ जिसका क्लास के साथ बॉन्डिंग बहुत कम है, that is a loosely bound student। और मैं that student is loosely bound, I will be able to transfer some of my energy to that electron, to that student, let us say, then my energy will get reduced, तब जाके वो modified line मिलेगा। But if I interact with a student, let us say, who is very tightly bound to the class, मैं उसको कोई इफेक्ट ही नहीं कर पाया, उसको अपना एनर्जी दे ही नहीं पाया, इट इज वेरी टाइटली बाउंड। यानी मैं आया और किसी एक को बोला चल उधर जा, मैं उसको इफेक्ट कर पाया, दैट इज अ लूजली बाउंड स्टूडेंट। आई कम टू द क्लास एंड आई ट्रांसफर सम ऑफ माय एनर्जी टू दैट स्टूडेंट और बोला कि तू वहां जा, ऑफिस में जा, एंड दैट पर्सन गोस, सो आई हैव ट्रांसफर्ड सम ऑफ माय एनर्जी टू दैट पार्टिकल। It is very loosely bound to the class. But let's say
I interact with such a student who is very tightly bound to the class. वो नहीं जाएगा class छोड़कर. So I am unable to transfer any of my energy to that particular person. मैं आया और मैं वापस गया. So my energy has not reduced in that case. So my wavelength will also not change. So that is the reason for unmodified light. So कुछ cases में photons inner electrons के साथ interact करते हैं और कुछ case में photons outer electrons के साथ interact करते हैं. इसीलिए we get two lines, one modified and one unmodified. Am I clear to everybody? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is the origin? आप लोग अपने language में क्या लिखोगे? The question is again origin of modified and unmodified lines. तो आंसर में क्या होगा आप लोगों का? If a photon, X-ray photon interacts with an outer electron, then it is able to transfer its energy to the outer electron. Hence, we get the modified light. And if the X-ray photon interacts with an inner electron, then it is unable to transfer its energy to that electron, and hence we get an unmodified light. Is it okay? Yes sir. Everybody, any question? No, sir. স্যার হ্যাঁ স্যার বলছি যে ফোটনটা এলো যেটা মানে লুজলি বাউন্ড যে ইলেকট্রন ছিল সেটার সাথে যখন ইন্টারঅ্যাক্ট করলো তখন তো লুজলি বাউন্ড ইলেকট্রনটা মানে চলে যাচ্ছে, কিন্তু যখন টাইটলি বাউন্ড ইলেকট্রনটার সাথে করছে ইন্টারঅ্যাক্ট তখন কি মানে ওই ফোটনটার কোনো ইলেকট্রনই মানে ফোটনটার কোনো এনার্জি ইলেকট্রনের মধ্যে ট্রান্সফার হচ্ছে না? No, what is happening is the photon coming, that is what, this is a tightly bound electron. This is a very tightly bound electron. ये photon आया, what will this do? It will make the electron oscillate. Oscillate करेगा ना electron? हाँ. It will not make the electron move क्योंकि this is tightly bound. सिर्फ क्या करेगा? ये photon आके ये photon टा की करবে? This photon will only make the electron go up and down. Because it is tightly bound, it will just make the electron go up and down with the same frequency. इसका जो frequency है. And in other words, this electron, since it is a charged particle, it will emit the same frequency again. Is it okay? Okay, sir. This will not happen. এইটা হবে না. It will not push the electron. It will not make the electron free. Electron के যদি kinetic energy দিয়ে দিচ্ছে, if the photon manages to give some kinetic energy to the electron, then it will lose some energy. And in that case, you would get a different mu. মানে photon comes, hits the electron, and manages to give the electron some energy. মানে electron takes away some energy. কিছুটা এনার্জি নিয়ে চলে যাচ্ছে. It takes away some of the energy from the photon. Then the scattered photon will be of lesser energy. But if the photon comes and if the electron is tightly bound, it will just make the electron oscillate up and down with the same frequency. It will not make the electron leave the orbit. And this oscillating electron will re-emit the same energy. Is it okay? Okay, sir. So that is the logic behind the reason behind the origin of modified and unmodified lines. There is another question, students. एक और question है. Maybe I do not know whether I'll have time for today or not, but the question is important. एक और question आता है semester में. Why cannot we use visible light to observe Compton effect? ये भी क्वेश्चन है.
मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज एन एक्सरे दैट कॉम्पटन यूज्ड. कॉम्पटन ने एक्सरे यूज किया था, एक्सरे का फोटोन था, नॉट विजिबल लाइट. तो पॉइंट ये है कि विजिबल लाइट को यूज नहीं कर सकते. विजिबल लाइट भी तो फोटोन ही होगा. कैन वी यूज विजिबल लाइट? नो, द आंसर इज नो. विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट नहीं दिखेगा. विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट नहीं दिखेगा. वी वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट यूजिंग विजिबल लाइट. द क्वेश्चन इज व्हाई. ओके, is it okay? The question clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Now let us go to the answer. Maybe 7 minutes are remaining. We can answer that question. We can answer that question. Can anybody tell me? Can anybody tell me what is the maximum shift in wavelength? Maximum shift क्या है wavelength का? बोलो. 2h by m0c. 2h by m0. अच्छा, अब मुझे बताओ h by m0c का वैल्यू कितना निकला था? 0.0242 एंगस्ट्रॉम. याद है? Yes, sir. तो डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम कितना निकलेगा? 0.0484 एंगस्ट्रॉम. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what is the wavelength of visible light? Wavelength range of visible light. कोई बता सकता है? It is from 4000 angstrom to 7000. 8,000. 7000. ये है violet के लिए, and this is for red. So, what is the average range? Wavelength का average wavelength of visible light. Average wavelength of visible light. It is around 5500 angstrom. Am I right? Yes, sir. So if we are using this wavelength, यानी average of this wavelength, उसमें maximum shift कितना मिल रहा है? 0.048. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो can you imagine ये कितना छोटा percentage है as compared to this? ये दिखेगा shift? Will you be able to observe this? No. No, sir. हाँ, तो visible light के केस में shift होता है, पर वो इतना छोटा होता है as compared to the wavelength of light we are using that we are unable to observe it. तो तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कॉम्पटन इफेक्ट होगा विजिबल लाइट के साथ? डेफिनेटली होगा. Yes, हर एक sir. लाइट के होगा. साथ पर होगा. भी हर एक लाइट के साथ होगा. एनी रेंज ऑफ वेवलेंथ के साथ होगा. बट द शिफ्ट इज सो स्मॉल as compared to the wavelength of light, visible light, that we are unable to observe it. Whereas X-ray का wavelength कितना होता है? X-ray का average wavelength होता है 1 angstrom. Can you imagine 0.0484 compared to 1 angstrom is around 5%. Am I right? yes, sir. तो ये 5% वाला शिफ्ट जो है ये दिख जाएगा एक्सरे के साथ. सो इफ वी यूज एक्सरे, वो जो शिफ्ट होगा दैट इज नॉट स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. तो जो शिफ्ट होगा वो दिख जाएगा. द पॉइंट इज दिस, वी विल बी एबल टू सी द शिफ्ट, ऑब्जर्व द शिफ्ट फॉर एक्सरे, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज वेरी स्मॉल. और शिफ्ट भी काफी स्मॉल है. शिफ्ट भी काफी स्मॉल है. वेवलेंथ भी छोटा है, शिफ्ट भी छोटा है, कंपैरिजन में है. सो वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व द शिफ्ट. बट फॉर विजिबल लाइट वेवलेंथ इतना ज्यादा है दैट वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द शिफ्ट. होगा शिफ्ट बट दिखेगा नहीं, इतना छोटा होगा. बट फॉर एक्सरे वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व द शिफ्ट. इज इट ओके? Yes, sir. तो आप लोग सर फिर गामा, हाँ, गामा से और ज्यादा इसकी- और अच्छा होगा. गामा से और जितना एंगस्ट्रॉम कम होता जाएगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल होगा. बट रिमेंबर गामा इज अ रेडियो एक्टिव रे, सो दैट इज Radiation. so that is hazardous as well. एक्सरे भी है बट उतना नहीं है.
एक्सरे डेफिनेटली उतना नहीं. गामा रे इज वेरी हैजार्डियस, सो गामा रे को यूज करना वाज नॉट राइट. सो गामा रेज, कॉस्मिक रेज, इनको यूज करोगे तो और अच्छा शिफ्ट दिखेगा क्वांटम में. बट ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा whether it is hazardous or not. X-rays are not hazardous, so you can use X-ray and observe the shift. Visible range को लेकर you cannot observe the shift. Is it okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I'll just take the. Please mute yourself or just a second. सर कार्बन ब्लैक को ही क्यों लिया गया और दूसरा मतलब कोई ये क्यों सिर्फ कार्बन ब्लैक को ही सिर्फ क्यों चूज किया कंप्यूटर ने? Coming. Wait. First, it was easily available, and second, their carbon has a good combination of both free and bound electrons. मतलब valence and bound electrons. You can get combinations of both. Basically, carbon का जो ionization potential है, or the energy required to ionize the electrons or to take away the electrons is low, and it is easily available. So that's why for many reasons he chose carbon. People can do it on other materials as well, but अगर बहुत tightly bound electrons मिल गए, then again modified line तो दिखेगा ही. Right. So basically all of this was again economically check करने के लिए, economically viable हो, दोनों type के electrons मिले, loosely bound and tightly bound, जिसको आयनाइज करना यानी जिसको नॉकआउट करना आसान हो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को. All of these things were kept in mind, and that is why carbon was the best target to choose. So इसका आंसर आप लोग कैसे दोगे? Less than 1 minute left. इसका आंसर आप दोगे delta lambda max is this, and mean wavelength or average wavelength of visible light is this. So it cannot be observed in comparison to this.